Good morning. I wanted to do a video in which I wanted to channelize some messages from angels and tell you what is the message for you. Okay, and I would like the cards only to tell what is the message instead of me trying to forcefully ask a question. Let's see what is the message that Archangel Michael would like to give us. That you first of all is get your power back. This is something that you need to be working on. You need to be getting your power back. You have forgotten who you are. You're a child of the divine, so take your power. Wow, this is such a powerful message. This is like the first message that has come, that you have to understand who you actually are and you have to take your power back. Secondly, it's open your heart. No one is perfect. Stop judging yourself and stop judging others. Let love heal the situation. The third message is open up your spiritual gifts. So I have a spiritual gift. I'm a psychic and I can connect with angels and receive messages. You can also do that. It's everybody can do that actually. So you need to be connected with that part of yourself that kind of connects you with the divine source and the light. Everything will be happening in perfect timing. This is it. You have to take action now. End of the day, it's your actions that will bring in the results. The results will come, miracles will happen, but you have to take the action. If you don't take the action, it's going to be tough. So just know that okay, whenever I itch my nose, it's always because when I am when I when I'm like ready to, when I'm channeling messages, I have some itching that happens. So yeah, I mean, everything is going to happen in your divine time. Be very clear about that. So don't worry about that. That when it's going to happen, sometimes that's like the main point of worry. That when would it happen? When would it happen? It will happen in the divine time. And the last message is you have to step in the spotlight. You have a message that the world needs to hear. It's time for you to share. So there is a unique message which is there inside of you. That's my cat Alex. There's a unique message in you that is there that the world needs to hear. Don't hide it. Don't push it. Don't sabotage yourself or sabotage anybody. Just let the message flow. And you're ready for more. Your career is growing and it's blossoming. Now is the time you take the time to make the changes. Okay. So this is the overall message. Okay. I just thought of sharing that with you. This is what you need to hear right now. Let me just elaborate on this. Get your power back. Part of the process of incarnating into a human experience is forgetting that you are a child of the divine. So first thing is when we become जब हम एक इंसान बन जाते हैं उसी टाइम हम आधा टाइम हम भूल जाते हैं कि हम जो है परमात्मा के पार्ट है, हम परमात्मा के बच्चे हैं. हमारे बायोलॉजिकल फादर अलग हो सकते हैं, सबके बायोलॉजिकल फादर अलग होंगे, पर हम सबका जो सोर्स फादर है वो एक है. चाहे हमारा वो एनिमल्स को जिसका भी हो, हम सबका फादर जो है स्पिरिचुअली, जो हमारे सबके फादर है, जो गॉड है, वो वन है. एज़ यू नो, एज़ यू ग्रो स्पिरिचुअली यू स्टार्ट टू रियलाइज़ द ट्रूथ ऑफ योर बीइंग एंड योर पर्पस. तो जो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका होने लगेगा, आप खुद को किसी से भी अलग नहीं सोचेंगे. आप समझ पाएंगे कि कैसे सब कुछ कनेक्टेड है और आपका बीइंग जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है. एट दिस टाइम you may be deepening your understanding of this fact, or perhaps you are simply proceeding on faith that it is true. But that faith can be fragile when your human experience keeps showing as dispowering evidence that says otherwise. तो क्या होता है, आपका जो फेथ होता है भगवान पे, वो धीरे धीरे शिवर होने लगता है, कम होने लगता है, जब आप देखते हो कि इंसान जन्म लेने के बाद इस पर कितने सारे ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, फ्रस्ट्रेशंस, धोखा, झूठ मिलता है. तो उसमें कभी कभी लग सकता है कि जो आपका रियली कनेक्शन है भगवान के साथ इतना स्ट्रॉन्ग है भी कि नहीं. पर ऐसे बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि वी एंजल्स हु सी यू फ्रॉम एन एंटायरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव नो योर ट्रू पावर एंड योर पावरफुल सेल्फ. तो जो हम हैं, हम देखो 3 डायमेंशनल बीइंग्स है, तो हम एक लिमिट तक ही देख सकते हैं. हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को साथ में नहीं देख सकते. हम जैसे हायर बीइंग्स हमें देखते हैं वैसे हम खुद को नहीं देख पाते. तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सी योर सेल्फ हाउ your angels see you and they see how powerful you are. So you have to connect with that. Your situation right now is such that you desperately need to take your power.
And when your concern involves a relationship, a work situation, or even an issue with your physical health, the message is the same. The time has come to remember who you truly are, start setting boundaries and claim what is best for you. देखिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आप जो हो एकदम मतलब समझो कि आप हो कौन। बहुत टाइम क्या होता है कि लाइफ में आप क्या ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ जाएंगे जो आपको मजबूर कर देगा भूलने के लिए कि आप कौन हो। मतलब आप डिवाइन बीइंग के एक सोर्स लाइट के एक पार्ट हो, आप एक लाइट बीइंग हो, तो आपको कनेक्टेड रहना है गॉड के साथ। तो क्या होता है काफ़ी टाइम हमारा जो रिलेशनशिप्स है, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है या नेगेटिविटी है किसी रिलेशनशिप्स में, या आप इंसान जन्म में तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से सब आ ही सकता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है हम अपना एसेंस भूल जाते हैं, और हमें वो भूलना नहीं है, हमें एकदम कनेक्टेड रहना है अपने एसेंस के साथ जो गॉड के साथ हमें कनेक्ट करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रियलाइज़ कि आप कौन हो। और चाहे आपका हेल्थ हो, आपके हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी आपको पावर लेने की ज़रूरत है। यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर रिलेशनशिप्स एंड योर वर्क लाइफ। सो डोंट फॉरगेट हु यू आर, जस्ट नो दैट हु यू आर, यू आर अ वेरी पावरफुल बीइंग। नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज़ ओपन योर हार्ट। तो ओपन योर हार्ट मतलब कि आपका जो दिल है उसको आप ओपन करें। लाइक यू शुड, when you are in a place of judgment about yourself or others, you create conflict that creates unrest, unhappiness and unforgiveness. Right now your ego is powerful determinant of your happiness. Things may seem complicated, but the truth is that you simply need to get out of your own way. Whatever the situation is, you'll find that approaching it with a sense of love can heal all the things. समझ में आया कि ओपन योर हार्ट मतलब क्या होता है, क्या होता है अपने माइंड में ही सोच लेते, जजमेंट बना लेते, अपने बारे में जजमेंट बना लेंगे, किसी और के बारे में जजमेंट बना लेंगे। तो इन जजमेंटों से क्या करते हैं हम एक ईगो का एक एटीट्यूड बनाते हैं, जिससे कि आप किसी और पे गुस्सा होंगे, आप उन पे एंग्री होंगे, है ना। आपका गुस्सा खुद पे भी हो सकता है, किसी और पे भी हो सकता है। तो फॉरगिवनेस आपके अंदर नहीं आएगा और आप चीज़ों को अनहैप्पी और अनरेस्ट में ला के कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट डू दैट एंड यू जस्ट नो that you have to perform from a space of love. तो when you are performing from a space of love, तब आपके साथ पूरा ब्रह्मांड काम कर रहा होता है, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। बट जब आप गुस्से में, ईगो में या फॉरगिवनेस नहीं लाते हो, गुस्से में काम करो, तो थोड़ा टफ हो जाता है। आपके मैनिफेस्टेशन भी आपके पास स्लोली आएगा। फिर there are going to be times when your behavior doesn't match up to your expectations of yourself. If this is the case now, what you are meant to be learning is how to love yourself regardless. Try to remember that at any given moment you are doing the best you can and try not to judge yourself too harshly. तो कभी कभी क्या होता है ना, हम खुद के ही ज़्यादा बड़े क्रिटिक्स हो जाते हैं। आप खुद को ही हो सकता है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, खुद का ही आपने स्टैंडर्ड इतना हाई बना के रखा है कि आप खुद ही उसको मतलब उस तक पहुँच नहीं पा रहे। आप खुद को ही मतलब हैप्पी नहीं कर पा रहे हो इन अ वे कि आपको लगता है जो आपका बेस्ट है आप वो नहीं हो रहे हो, या आप अपना बेस्ट सेल्फ नहीं बन पा रहे हो। तो इस चक्कर में आप खुद ही को जज करो। बाहर से इंसान आपको क्या जज करेगा, आप खुद को ही जज कर रहे हो, तो वैसे ना करें। सबसे पहले स्पिरिचुअल लेसन आपका ये रहता है कि आप जो हो वो जैसे भी हो राइट नाउ मिरर में खुद को देखिए और उसको प्यार कीजिए। आपका फर्स्ट पार्ट रहता है कि यू हैव टू लव योर सेल्फ। just accept it because you are living in your body, you are this life that God has given. तो आपको खुद को रिस्पेक्ट करना मतलब गॉड को रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि भगवान ने आपको बनाया है, राइट। ऐसे सबको बनाया, तो ना तो खुद को जज करे ना किसी और को जज करे। If you could see yourself the way I see you, then you would never be hard on yourself again. You would know that you are a child of unfathomable beauty and light. तो अगर आप खुद को वैसे देख सकते हैं जैसे ऊपर वाले आपको देखते हैं, तो आप कभी भी खुद पे हार्श नहीं होते हैं। आपको हमेशा पता होता है कि ऊपर वाला आपसे कितना प्यार करता है, भगवान जी आपसे कितना प्यार करते हैं, एंजल्स आपको कितना प्यार करते हैं। तो ये जो हायर एनर्जीज़ है, उन एनर्जीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए आप खुद के साथ कभी भी गलत बिहेवियर ना रखें और खुद को रियलाइज़ करें कि आप लाइट के यू आर अ पार्ट ऑफ लाइट, जो लाइट सोर्स है उसके पार्ट है। There is also going to be times when other people let you down. It's important to remember that they too are beings of the beauty and light.
तो ऐसे क्या होता है, अब आप खुद से प्यार कर रहे हो, पर जिसको आप प्यार करते हो, जिन लोगों से आप प्यार करते हो, या जो लोग हैं आपके सराउंडिंग में, वो लोग आपको लेट डाउन कर रहे हैं, वो लोग आपको अच्छा नहीं फील करा रहे हैं, गंदा फील करा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वो भी तो भगवान की पार्ट है, तो वो भी मतलब लाइट के पार्ट है, तो आपको उनके लिए भी गुस्सा नहीं रखना। देयर इज़ नो वे यू to fully understand their actions, because it's impossible to comprehend total history of another unique soul having a human incarnation. अब कोई जैसे बिहेव कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, अगर आपका किसी से के बिहेवियर से आपको अफेक्ट हो रहा है, तो आप उसके बारे में कितना भी कोशिश करो नहीं समझ सकते हो, क्योंकि एक इंसान जब कोई इंसान जब ह्यूमन लाइफ में हम होते हैं, तब उसके क्या क्या इनकारनेशंस रहे हैं, उस पर क्या क्या उसका जर्नी रहा है, क्या उसका स्टोरी आपको नहीं पता। तो आपको उसको बस हीलिंग लाइट भेजना है, आपको उसको बस ब्लेसिंग्स देना है, खुद को बस ब्लेसिंग्स देना है, उसके लिए भी कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं रखना। यू आर कॉल्ड नाउ टू ओपन योर हार्ट एंड ऑफर योर सेल्फ एंड अदर्स कंपैशन। तो अभी आपको मैं इस मैसेज के थ्रू बता रही हूँ कि यू आर बीन आस्क्ड, अगर आप इस मैसेज को सुन रहे हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, देन यू आर बीइंग आस्क्ड कि अपना जो अंदर का लाइट है उसको आप हर जगह दिखाइए, एक टॉर्च की तरह बन जाइए, जहाँ पे भी डार्कनेस है वहाँ पे लाइट दिखाइए। लाइट क्या है? लाइट प्यार है। हर चीज़ से, हर इंसान से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए और कंपैशन दिखाइए। बहुत टाइम क्या होता है कि एक छोटा सा एनिमल ही है बैठा हुआ है, उसको खाना खिला देना, थोड़ा केयर कर लेना, जो कभी कोई सैड है या किसी से बात करने के टाइम थोड़ा काइंडनेस से बात कर लेना, है ना, किसी को थोड़ा अच्छा फील करा देना, दूसरों का जो वेट है उसको अपलिफ्ट कर देना। तो फॉरगिव और दूसरों को फॉरगिव करना, जो भी आपके साथ गलत करते हो उन सबको फॉरगिव करना, क्योंकि आप भी बहुत सारा गलती करते हो। ऐसा नहीं है कि आप गलतियाँ नहीं करते हो, आप भी गलती करते हो, भगवान जी आपको फॉरगिव करते हैं। तो आपको भगवान जी से फॉरगिवनेस चाहिए आपकी गलतियों के लिए, आपको भी दूसरों को फॉरगिव करना होगा। तो सब कुछ चंगा है, नो टेंशन कोनो चिंता करार दरकार नहीं। जजिंग अदर्स इज़ योर वर्ल्ड नंबर वन प्रॉब्लम राइट नाउ, डोंट बी पार्ट অফ দিস প্রবলেম উইথ দ্য সলিউশন। আজকে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রবলেম হলো মানুষকে জাজ করা। যখন আমরা মানুষকে জাজ করি, যত বেশি জাজ করবো, ও এমন করেছে, কেন করেছে, ও এটা ওইটা, এইভাবে করলে এইটাই হলো পৃথিবীর মেইন প্রবলেম। তো আমরা এই জাজমেন্টের মধ্যে পড়বোই না, আমরা সলিউশন হবো লেট লাভ হিল দ্য সিচুয়েশন। তো লাভিং ওয়েতে এই সিচুয়েশনটাকে আমরা হিল করবো। আচ্ছা, বাকি মেসেজেসগুলো আমি আরেকটা ভিডিওতে বানাবো। আই হোপ কি আমার এই মেসেজটা আপনার ভালো লেগেছে। আরও একটা মেসেজ আছে যেটা আমি দেখছি, নেক্সট ভিডিওতে বানাচ্ছি। আর আপনাদেরকে আমি হোপ করি, আই প্রে দ্যাট ইউ গেট অল দ্য লাভ, হ্যাপিনেস অ্যান্ড ব্লেসিংস ফ্রম আর্কএঞ্জেল মাইকেল, আর্কএঞ্জেল গেব্রিয়াল, from the source light, from Lord Shiva, from Lord Ganesha, Lord Buddha and জয় মা কালী। এইটা দিয়ে আমি আপনার কাছে যে বিষটা দিলাম, এটা প্রত্যেক রিলিজনের মানুষের জন্যই, যেন আমি জাস্ট সোর্স থেকে লাইটটা এনার্জাইজভাবে এনে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি, সো দ্যাট আপনার জীবন ভালো হোক আর খুশি থাকেন। আর ইয়া, do things, get your power back, don't judge yourself, don't judge others, subscribe to my channel if you've not subscribed to my channel yet। আমি এখানে ভালো ভালো কন্টেন্ট বানাই যেটাতে আপনার হিলিংয়ের জন্য। আমি একজন সাইকিক, একজন স্পিরিচুয়াল হিলার আর রেকি হিলার, আর আমি ট্যারো রিডারও। তাই আমার কর্তব্য যে আমি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আমার স্পিরিচুয়াল যে গিফটস ওটা আমি শেয়ার করবো। আর এটা আমার শেয়ার করা আমার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট, বিকজ নাহলে আমার শরীর ঠিক থাকে না। আর আপনিও আপনার যে स्पिरिचुअल गिफ्ट्स আছে, এটা আপনাকে বলা হচ্ছে जो आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है उसको आप फाइंड कीजिए और उसको आप औरों को हेल्प करने के लिए यूज़ कीजिए, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी कमिंग आउट फॉर यू इन द परफेक्ट टाइम। यू गोइंग टू गेट एवरीथिंग दैट यू आर डिज़ायरिंग फॉर, बट यू हैव टू बी ready to step out and to share your wisdom, because the more knowledge you have, the more responsible you are to share it also. That is what the cards are telling, and you are ready for more. Everything is going to be growing and blossoming. Okay, bye, take care.